वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, वॉशिंगटन में इंडिया फर्स्ट का दौर खत्म हो गया। मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने पाक भारत जंग के बाद की कहानी बयान कर दी। लिखा, पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे हैं। पाकिस्तान को खित्ते की पॉलिसी में मरकजी सतून करार दे दिया। का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। पाक भारत जंग अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद और ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में तब्दीली की वजह बनी। अमेरिकी पॉलिसी और जुनूबी एशिया के तवाजुन को रीराइट करने में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने असल किरदार अदा किया। वॉशिंगटन टाइम्स ने अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। पाक अमरीका ताल्लुकात में फैसला कुन मोड़ मई की मुख्तसर मगर शदीद पाक भारत जंग से आया। पाकिस्तान की फौजी कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। सीज फायर पर भारत का सख्त रद्द-ए-अमल नागवार गुजरा, जबकि पाकिस्तान ने सालसी को कदर और शुक्रगुजारी से कबूल किया। पाक भारत जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रॉ हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को डिसिप्लिन, डार्क हॉर्स और डेलिब्रेट मिस्ट्री जैसे अलकाबात दिए गए। व्हाइट हाउस में सोहराने को किसी पाकिस्तानी मिलिट्री हेड के लिए पहली मिसाल करार दिया गया। फील्ड मार्शल का सैंड कॉम हेडक्वार्टर्स में रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। 2026 के आगाज पर पाकिस्तान को अमेरिकी सदर की ग्रैंड स्ट्रेटेजी के मरकज के करीब देखा जा रहा है। वॉशिंगटन टाइम्स में शाया आर्टिकल के मुसन्निफ मार्क कमिट ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पर अमेरिका के बढ़ते एतमाद की बुनियाद मई की जंग थी। उस वक्त भी अमेरिका और पाकिस्तान को भारत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल का सामना है। अमेरिका की कौमी सलामती की हिकमत अमली पैसिफिक रीजन पर मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान के लिए इस अमल का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका है। What happened over the last year in terms of rebuilding confidence was in many ways a result of the conflict between India and Pakistan. President Trump put great personal effort into trying to solve that conflict. Pakistan was very appreciative of the help. India denied the help. President Trump, being a man that makes good decisions but also makes personal decisions, took account of that. And I think General Munir recognized that as well. Relationships between countries are like relationships between people. They must be nurtured. They must continue. It takes a lot of effort. It takes a lot of give and take. Pakistan is willing to make those, in some cases, concessions, in some cases, demands. And the same thing happens from Washington. I think it will be a durable relationship. He is the president, so his personal approach is the most important. But his decisions percolate down through the administration, through that structure that you're referring to. Pakistan needs to take that into account as they have that relationship, particularly as the United States national security strategy is talking to more of a shift away from the Middle East and Europe and more towards the Pacific Basin and our own hemisphere. There's an opportunity for Pakistan to be part of that. It all started, the spark for that fire was the gratitude demonstrated to President Trump by Pakistani authorities for his intervention in the war. And I'll also be candid, there are some concerns and some issues our country is having with India right now. The strength of the relationship, the foundation of that relationship, aside from strategic, is military to military and intelligence services to intelligence services. We've always had good military relationship. That has gone on for years and years. It has been hindered at times by geopolitical events, but the military relationship has always been strong. All countries have challenges with intelligence sharing. Continue the military foundation, improve the intelligence foundation, and I think there will be a strengthening and increasing partnership with Pakistan for years to come. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में टीम के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। बेहतरीन बैटिंग पर समीर मिन्हास को शाबाश दी। अपने खिताब में कहा, सबको मुबारक हो, आपने मुखालिफ को वो शिकस्त दी है जो वो सोच नहीं सकता था। पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जिस तरह बुनियाद मरसूस में भारत को शिकस्त हुई, इसी तरह क्रिकेट टीम इस मुखालिफ से जीती है।
24 करोड़ आवाम के दिल जीते हैं, कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। समीर मिन्हास कहाँ है? भरपूर क्लैपिंग। Oh, he's taken the bowler on. That's gone towards the sun. The perfect example of rising to the occasion. Sameer Minhas. मुसनफी की शबाना रोज काविश मेहनत अफरार साहब की कंट्रीब्यूशन है। मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी है वो सोच भी नहीं सकता था। And this is the moment. Pakistan becoming the champions. The first exclusive win for Pakistan. जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, बनियान मरसूस फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी। अपने उसी मुखालिफ के खिलाफ जीता है। बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज्जत मिली, फतह मिली। और वो बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का इनाम करता हूँ। कौमी अंडर 19 टीम की तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। नौजवान क्रिकेटर्स की कामयाबी नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और जिद्दोजहद का नतीजा करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भारत को धूल चटाने वाली चैंपियन टीम के खिलाड़ियों से गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से नौजवान क्रिकेटर्स की मुलाकात GHQ में हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार फतह पर टीम को मुबारकबाद दी। नौजवान टीम के डिसिप्लिन, टीम वर्क और शानदार मुकाबले को सराहा। अज़्म और जीत की लगन की भी तारीफ की। कहा पाकिस्तानी नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल हैं। कौमी अंडर 19 टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई को एजाज़ करार दिया। हमारे दौर में भी भारतीय टीम हारती थी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बरकरार रहती थी। उन्होंने अब ऐसा नहीं है। कौमी अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा खिलाड़ियों को बताया फाइनल में कुछ भी हो हम आपके साथ खड़े होंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम फील्ड मार्शल, वजीर आजम और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं। हारते थे, जीतते थे, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बरकरार रहती थी। पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को हमें अलग रखना चाहिए। जेंटलमैन गेम की खूबसूरती को खराब नहीं करना चाहिए। लड़कों से यही बात की थी, इस दिन को ऐसे खेलें जबकि आने वाली जिंदगी हो। लोग ये दिन याद रखें, आप वो टीम बने पाकिस्तान के लिए एशिया कप जीते। जो भी रिजल्ट होगा हम आपके साथ खड़े हैं। कौम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से इन बच्चों को वेलकम किया। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, इन बच्चों को लेकर यहाँ पाकिस्तान आया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बच्चों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन बच्चों को बुलाया, हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट किया और आने वाले वक्तों में भी क्रिकेट को और ज्यादा सपोर्ट करें। बेटे की वजह से इज्जत मिली, दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं तो फख्र महसूस कर रहा हूँ। अंडर 19 एशिया कप फाइनल के सुपर हीरो समीर मिन्हास के वालिद की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। काशिफ मिन्हास ने कहा समीर ने नाकाबिल फरामोश इनिंग्स खेलकर सबसे बड़े दुश्मन को चारों शाने चित किया। तो जो है मेरे जो मुल्क के लोगों की फीलिंग्स है ना, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हूँ। बच्चे की वजह से आज इस मुल्क ने जो हमें इज्जत दी है, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे पाकिस्तानी कौम का। दूसरे मुल्कों के अंदर भी जो हमारे पाकिस्तानी खुश हैं, उनकी कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बहुत प्राउड फील कर। इस इनिंग को एक सारी जिंदगी की यादगार इनिंग हम कह सकते हैं। सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ पंजा आजमाई की और उनको चारों खाने चित कर दिए। उसने दुश्मन के बच्चे को सीख पढ़ाया उसने जी। उनसे ये रिक्वेस्ट है कि खेल को खेल रखें और सियासत को सियासत रखें। नामुनासिब रवैये पर भारतीय खिलाड़ियों की शिकायत का फैसला। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में मुखालिफ खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे। हमारे खिलाड़ियों ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया। सियासत और खेल अलग अलग रखना चाहिए। मुखालिफ टीम फिर गुज़िश्ता तल्ख तजुर्बे को दोहराती रही। इससे मुतालिक ICC को आगाह कर रहे हैं और क्रिकेट को अलग-अलग रखना चाहिए। अब जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, हमारे प्लेयर्स का सब्र का लेवल था कि उन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो बार-बार करते रहे। ऐसी चीज़ें हुई, ICC को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में। क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा है इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। उसमें से बहुत सारे प्लेयर फ्यूचर में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। अंडर 19 एशिया कप में भारत को चारों शाने चित करने वाले हीरोज का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। जूनियर टीम को कौम ने पलकों पर बिठा लिया। सख्त सर्दी में भी मद्दाह बड़ी तादाद में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। खिलाड़ियों को हार पहनाए, फूल बरसाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान से शिकस्त कबूल नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से बदतरीन नाकामी पर अपनी टीम के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया का कहना है कोच ऋषिकेश कनटकर और कप्तान आयुष महात्रे से हारने की वजूहात पूछी जाएंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले आयुष महात्रे को कप्तानी से हटाने का इम्कान।
भारतीय खिलाड़ियों का रवैया और डिसिप्लिन पर भी सवाल हो सकते हैं। पाकिस्तानी जब भी मुत्तहिद हुए, पाकिस्तान नाकाम नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान ने अपनी दिफा में वाज़े फौजी कामयाबी हासिल की है। दुनिया ने देख लिया, जब भी इम्तिहान लिया गया पाकिस्तान ने साबित कदमी दिखाई। Pakistan has never lacked courage. Pakistan has never lacked resilience. Pakistan has never failed when its people stood united. Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested. सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने मुलाकात की। इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म जाहिर किया। ISPR का कहना है, सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वाराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल ने खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एजाज़ को पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात का मज़र करार दिया। मुल्क के बाला इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी जारी है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान के शहर चमन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने हर तरफ सफ़ेदी बिखेर दी। खोजक टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा चकजई के इलाके बर्फ से ढक गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों कालाम और मानसहरा में खूब बर्फबारी हुई है। मोहम्मद में भी बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चलास में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। शदीद बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्कर्दू में भी बर्फबारी ने हर तरफ चांदी बिखेर दी है। फुलजा के गोजाल रीजन में गुज़िश्ता रात से चलने वाली तूफ़ानी हवाओं ने तबाही मचा दी। पूरे रीजन में बिजली मुअत्तल है। मकानों की छतें, बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। शहरियों को परेशानी का सामना है। आज़ाद कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, वादी नीलम, वादी अलीपा और रावलाकोट में मौसम शदीद सर्द हो गया। वादी स्वात में बर्फबारी के बाद मुल्क भर से आए सयाहों के वारे न्यारे हो गए। दांत बजा देने वाली सर्दी से बचने के लिए सयाह आग जलाए बैठे हैं। तफसीलात बता रहे हैं शहजाद आलम। वादी स्वात में वक्फे वक्फे से बारिश और बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसको देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने जन्नत नज़ीर वादी स्वात का रुख कर लिया और उन्होंने बालाई इलाकों कालाम, मलम जब्बा, बहरैन, मदेन और दीगर इलाकों में डेरे डाल लिया। बाला इलाकों में होने वाली बर्फबारी से जो सयाह आए वो काफ़ी महजूज हो रहे हैं और जो बाला इलाकों की रौनक है वो भी दोबाला हो गए। इस वक्त भी कालाम, मलम जब्बा और दीगर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और जो सयाह आए वो उसमें काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। बरतानिया में अफगान सियासी पनाह गुज़ीन दहशत गर्दों के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। बरतानवी अखबार द सन का इंकशाफ अफगान पनाह गुज़ीन की निशानदही भी कर दी है। ARY न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब बेग से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। आफ्ताब, मजीद क्या दावा किया अखबार की जानिब से? जी बिल्कुल, ये द सन अखबार ने एतवार के शुमारे में एक अफगानी तालिबान अजीज़ुर रहमान अजरवाल के बारे में खबर शाया की है, जिसके मुताबिक अजीज़ुर रहमान 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत इक़्तिदार संभालने के बाद बरतानिया में सियासी पनाह हासिल की और ये शख्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन दिनों पाकिस्तानी तालिबान की माली मदद के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि अजीज़ुर रहमान न सिर्फ सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहा है बल्कि बरतानिया में दहशतगर्द करार दी गई तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए चंदे भी मांग रहा है, जो कि बरतानिया में सरासर गैर कानूनी है। अखबार ने यह भी लिखा है कि अजीज़ुर रहमान पश्तो में इन लोगों के लिए फंड रेजिंग कर रहा है जो 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के 155 बच्चों के कातिल हैं। अखबार के मुताबिक अजीज़ुर रहमान का कहना है कि चूँकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का क़याम चाहती है, इसलिए उनकी मदद करना भी अच्छा अमल है। अखबार ने जब होम ऑफिस से इस बारे में मौक़िफ़ पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इंफरादी केस पर तबसरे नहीं करते, लेकिन उनका कहना था कि किसी दहशतगर्द तंजीम की हमायत करना गैर कानूनी है, ऐसे किसी भी जिम्मेदार को डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
जब अखबार ने अजीज रहमान से रब्ता किया तो उसने अखबार को धमकियों में पैगाम देने शुरू कर दिए। जी, आपका शुक्रिया आफ्ताब, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की शहादत के बाद एक और नौजवान सियासी रहनुमा मोहम्मद मतलब शगदर पर हमला। बांग्लादेशी हुकाम ने बताया कि खुलना में दहशतगर्दों ने नेशनल सिटीजन पार्टी के नौजवान रहनुमा मतलब शगदर पर दिन दहाड़े हमला किया। उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां मोहम्मद मतलब की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है कि गोली मोहम्मद मतलब के कान को छूती हुई निकल गई। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। इनकलाब मंच के बानी शरीफ उस्मान हादी 18 दिसंबर को कातिलाना हमले में शहीद हो गए थे, जिसके बाद बांग्लादेश में भारत मुखालिफ बड़े मुजाहरे किए गए। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने तमाम काउंसलर और वीज़ा खिदमात ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे के बाद काउंसलर और वीज़ा सर्विसेज बंद की गई। बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइज़र तौहीद हुसैन ने बताया, मुजाहिरीन की जानिब से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को खतरनाक नताइज की धमकियां दी गई हैं। NCCIA पेशावर की बड़ी कार्रवाई, ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस FIA के 3 जाली अहलकार गिरफ्तार कर लिए। नर्सिंग कॉलेज हयाताबाद की तालिबा की दरख्वास्त पर NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार होने वालों में हमाद खान, हसनैन और फवाद शामिल हैं। मुलजिमान जाली तफ्तीश की आड़ में कॉलेज गए, तालिबा का मोबाइल मांगा, प्रिंसिपल के जरिए तालिबा का मोबाइल फ़ोन लिया, डाटा तक रसाई हासिल की, तालिबा की काबिल एतराज़ तस्वीर खींची और ब्लैकमेल किया। मुलजिम काबिल एतराज़ मवाद एक दूसरे को शेयर करते रहे। मुलजिम FIA की वर्दी का भी इस्तेमाल करते थे। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन से डिजिटल शवाहिद भी हासिल कर लिए गए। बानी PTI ने आज भी तसादुम का रास्ता इख्तियार किया है। बानी के आज के बयान पर कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में PTI भी है तो डायलॉग वाली बात ना ही समझें। राना सनाउल्ला ने एक सवाल पर कहा कि वज़ीर आज़म ने 4 बार डायलॉग की वाज़ेह पेशकश की, लेकिन PTI तसादुम की राह पर ही चलना चाहती है। इमरान खान साहब ने पहले दिन से और आज भी उन्होंने तसादुम का रास्ता इख्तियार किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को क्या अब आप एक डायलॉग पार्टनर नहीं मानते? अगर उसमें PTI मौजूद है तो फिर आप डायलॉग वाली बात जो है ना, इसको फिर ना ही समझे। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने 4 मरतबा डायलॉग की जो है वो पेशकश की है। यौम आज़ादी के मौके पे जो मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की ऑफर जो की है वो भी बड़ी वाज़ेह थी और अस्करी क़यादत सारी उस वक्त उनके साथ बैठी थी। हलीमा बीबी का बयान बड़ा सख्त आया जजेस के बारे में, क्या इस पे गवर्नमेंट क्या केस बनाने का सोच रही है? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। पहले मुआफ़ी बाद में बात। वज़ीर इत्तलात ने PTI को मुज़ाकरात का फार्मूला बता दिया। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PTI माजरत के साथ शर्मिंदगी का इजहार करे कि आइंदा दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाएगी। गालम गलोच करने और इदारों के खिलाफ बयानिए चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से खुद को अलग करे, फिर नेशनल डायलॉग की बात करे। रात की एक ही सूरत है, पहले माफी मांगे, माजरत करें, शर्मिंदगी का इजहार करें और कहें कि हम दिफाई इदारों के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाएंगे। फौजी क़यादत और मुल्की सालमियत के खिलाफ बयानिया है, उसको तर्क करें। जो बाहर अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, जो मुल्की सालमियत पे सवाल उठाते हैं, गालम गलोच करते हैं, उनसे अपने आप को डिसोसिएट करें तो ठीक है, फिर बात करते हैं और माजरत करें कि जी हम ये गलत बयानिया पे चल रहे थे, हम एक ओवरऑल नेशनल डायलॉग चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। जो पार्टी लीडर मुज़ाकरात की बात करते हैं वो बानी PTI के साथ ही नहीं है। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात किए जाएं वो बानी के मौक़िफ़ के साथ नहीं। बानी PTI 2.5 साल से जेल में बैठे हैं। बानी ने हमेशा कहा वो अपने केसेस का सामना करेंगे। कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, वो इमरान खान की पार्टी के नहीं होंगे और ना ही इमरान खान के साथ के हैं, क्योंकि इमरान खान बारी बारी कह चुके हैं। जब वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दो, क्यों कह रहे हैं? इमरान खान को 10 साल की कैद दे रहे हैं तो आप किससे बात करना चाहते हैं? 12 इमरान खान ने ये पैगाम भेजा है, तो ये पार्टी के जो लोग कह रहे हैं ना, ये फिर इमरान खान के साथी नहीं है। कोयटा एयरपोर्ट पर PTI के 2 ग्रुपों में हाथापाई। दोनों ग्रुप साबिक MNA अमजद न्याजी को लेने आए थे। झगड़ा अमजद न्याजी को अपने साथ ले जाने पर हुआ। दोनों ग्रुप अमजद न्याजी को अपनी गाड़ी में ले जाना चाहते थे।
एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने दोनों ग्रुपों को एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया। लाड़काना में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। बस की छत पर बैठे दो नौजवान बिजली के तारों से टकराकर जिंदगी से हाथ धो बैठे। पीर शेर के गांव फकीरवाद जतोई से मुरादो आहन जाने वाली बस खौफनाक हादसे का शिकार हुई। बस की छत पर सवार 3 नौजवान करंट लगने के बाद शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिली के दौरान 15 साला सकलैन जतोई और उसका कज़न 14 साला बिलावल जतोई जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। अरसलान जतोई मामूली जख्मी हुआ। हादसा उस वक्त पेश आया जब खानदान शादी की तकरीब में शामिल होने जा रहा था। मैयतें घर पहुंची तो खुशियों भरे घर में कोहराम मच गया। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची में कपड़ों की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ खान। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़े इस्तेमाल शुदा कपड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई। आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी, जिसे बुझाने के लिए 15 से जायद फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 15 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, जिसमें KMC की फायर ब्रिगेड, उसकी स्नॉर्कल्स, हमारी रेस्क्यू 222 की फायर ब्रिगेड और EPZ की अपनी फायर ब्रिगेड ने पार्टिसिपेट किया, जो अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के तर्जुमान मलिक अब्दुल अजीज के मुताबिक जोन में बैक वक्त 4 फायर टेंडर्स मौजूद होते हैं। यूज क्लोथिंग की फैक्ट्री थी, जिसको हम आम जुबान में लुंडे की फैक्ट्री बोलते हैं। 3000 गज पे ये जो है ना इसका यूनिट बना हुआ था और इसके 2nd फ्लोर पे जो है ना ये जो उसने वहाँ पे स्टोरेज की हुई थी, वहाँ पे ये अचानक आग भड़की है। चीफ फायर ऑफिसर कराची हुमायूं खान ने कहा कि ऐसे सानिहात से बचाव के लिए मौसर मंसूबाबंदी की जरूरत है। जितनी भी यहाँ पर बिल्डिंगें, कोई भी बिल्डिंग गिरी नहीं है, सब बैठी है। दर हकीकत ये है कि इसको प्लान करने की जरूरत है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के दूसरे फ्लोर पर कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। आग लगने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले ने कुछ घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। तहम आग लगने की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। कैमरामैन अदील खान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत और हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर रिजवान आफ्ताब अहमद की मुलाकात। मुल्क का नाम रोशन करने वाले एथलेटिक्स की फिजिकल फिटनेस के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने रिजवान आफ्ताब को कौमी खिदमत पर तारीफी सर्टिफिकेट पेश किया। गवर्नर सलीम हैदर खान ने कहा, पाकिस्तान के एथलेटिक्स की कम वसाइल के बावजूद दुनिया में कामयाबियाँ समेट रहे हैं और मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। माहिर ग़िज़ाइयत रिजवान आफ्ताब ने कहा, कौमी खिलाड़ियों की हेल्थ और मेडिकल न्यूट्रिशन इंतहाई अहमियत की हामिल है। कराची में क्रिसमस की तक़रीबात। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ख़रीदारी में मसरूफ़ है। कोई क्रिसमस ट्री ले रहा है तो कोई घरों को सजाने के लिए बरक़ी कुमकुमा ख़रीद रहा है। हमारे नुमाइंदा चांद नवाब हमें इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे। बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस अकीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बाज़ारों में इतना रश है, गहमा गहमी है, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनका जो त्यौहार है क्रिसमस उसे जोश और खरोश के साथ मनाए। शॉपिंग सेंटरों में रश है, कोई ट्री ख़रीद रहा है तो कोई कपड़े ख़रीद रहा है, हर तरफ रश है, जूते ख़रीद रहे हैं, घरों को सजाते हैं, ट्री से सजाते हैं और लाइटें लगाते हैं, घर की डेकोरेशन करते हैं, अच्छी सजावट। कहते हैं क्रिसमस मनाने के लिए हम जोश व खरोश के साथ तैयारियां करते हैं। जी, कराची इन दिनों अदबी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। दुनिया भर से नामवर शोरा और अदीब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कराची में मौजूद हैं। साकुनान शहर क़ायद के महमूद अहमद खान ने कनाडा से आने वाले मारूफ नक्काद और शायर डॉक्टर तकी आबदी के साथ एक शाम और मुशायरे का एहतमाम किया। मुशायरे की सदारत साबिक वाइस चांसलर जामिया कराची डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी ने की। मुशायरे में नामवर शोरा ने अपना कलाम सुनाया और हाज़रीन से खूब दाद समेटी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।